Yes. In today's session, we'll be continuing with the chapter A Treat for Mosquitoes. Please come to page number 72. Please come to page number 72. I'll be discussing with you right now Find and Tell, that is there on page number 72. Now, have you seen any poster like this put up anywhere? देखो बच्चे, आपके पेज नंबर 72 पे can you see a poster? Yes, we've gone through this poster. This poster is containing images as well as some written material. And it asks a question: Are you inviting mosquitoes? And the picture just above the question explains the different ways in which the mosquitoes will breed in our area. The first picture talks about the dustbins not being clean, water being collected in them. That becomes a place for breeding of mosquitoes. In the second picture, you see that the water is being leaking from the AC and water is being collected on the ground. That becomes a stagnant water and a breeding place for mosquitoes. In the third picture, you will see that the area in which the hand pump is installed, it is cemented. Due to that, water is not able to seep into the ground, and therefore water is collected and becomes a place for breeding of mosquitoes. In the fourth picture, children, जी बेटा, मैम पेज नंबर 71 पे आ जाओ. पेज नंबर 71 पे आया आप लोग? ठीक है, थैंक यू. In picture number 4, we see that potted plants are cluttered together. What do you understand by clutter? When things are kept very close to each other, it is called clutter. When things are kept very close to each other, it is called clutter. So these are the ways you will be creating a very safe home for breeding of mosquitoes. What do you understand by breeding? Birth and the whole cycle in which the mosquitoes complete their cycle of birth and becoming a mosquito. Be aware, it is written in bold with an exclamatory mark, right? They spread malaria, dengue, chikungunya. Why should we be aware? Because if mosquitoes breed in such places, then they will bite. Female Anopheles mosquitoes will breed in such places. It will bite the person which is living in the who is living in the surrounding area. So now they have given us some instructions how we can avoid water from collecting in our surrounding area. They spread malaria, dengue, chikungunya. Don't let water collect around your house. Fill up the pits. If there are some pits around your house in the rainy season, it's a God gift, but the God gift turns into a boon when mosquitoes breed in the stagnant water. Therefore, if there are pits around your house, you have to put mud into it so that it gets covered completely, and the place where the water is being collected, it is filled with mud and no water will be collected. It will prevent collection of water. Keep the water pots, coolers and tanks clean. They should be dried every week, right? So the coolers that we use in the देखो बच्चे ऐसा होता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जनवरी से स्टार्ट करो उस टाइम पे कौन सा मौसम रहता है? शीत मौसम रहता है, राइट? विंटर सीजन. उसके बाद में आता है स्प्रिंग, फिर आता है समर, एंड आफ्टर समर, after lot of evaporated, right? Water gets evaporated and there comes rain. Excuse me, children. ऐसे कुछ अच्छी चीज से कोई बात नहीं. किसने बनाया है? किसने अरेंजमेंट मैम पेज नंबर क्या है? करना है ना? फर्स्ट एम है ना?
ये 11 o'clock 71. 11 तो मेरी थर्ड में क्लास रहती है आज नहीं, आज नहीं, ठीक है, थैंक यू। मैम, जी बेटा जी, पेज नंबर बेटा पेज नंबर 71 पे आइए, प्लीज कम टू Okay, पेज ma'am. नंबर 71। जी, keep the water pots, coolers and tanks clean. They should be dried every week. Use mosquito nets to protect yourself. हम ओडोमोस यूज करते हैं जब हम बाहर जाते हैं, घर में हमारे मच्छर होते हैं, तो हमें एटलीस्ट अपनी स्लीप कंप्लीट करनी होती है। Completing your sleep is very important for you to work with good zeal the next day, right? So we use mosquito nets while we sleep so that mosquitoes, they don't enter into those, they cannot enter into the holes of the net, the very tiny holes. So it will only allow the oxygen to come and you will be able to breathe, but the mosquitoes will not be able to come and bite you. Spray kerosene if the water is collected at some place. Why do you spray kerosene? We will face such a question in the find out and tell section, and then we will answer it. Children, I will put the images of the answers which have to be done in the textbook, and this will be created as a material. So please do it in your textbook. ठीक है बेटा? तो अभी सैटरडे संडे हॉलीडे मिलने वाला है आपको, मैडम वर्कशीट डालेंगी, वो आपको बहुत नीट हैंडराइटिंग में अपनी क्लासवर्क नोटबुक में लिख लेना है। फिर उसके बाद में मैडम जब आएंगी तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगी, ठीक है? Okay, ma'am. बेटा आप थोड़ा कैमरा ऊपर कर लीजिए, आपका फेस अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। Now please come to page number 70, find out and tell. Have you seen any poster like this put up anywhere? तो बेटा पोस्टर्स जो होते हैं हम हर जगह देख पाते हैं। अगर आप रेनी सीजन में बाहर निकलोगे ना, एंड स्पेशली हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हो ना, तो वहां पे आपको बहुत मिलेंगे। Why? Because they want to, now what happens in hospital? Treatment of patients happen. Now, but you know, there's a limit. हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में बेटा अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स, they are very limited in number, so they want only limited people to be infected so that they can treat them and give them nice treatment. अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ बेटा, everyone was getting infected, वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, there were only some methods by which we could protect ourselves. So doctors, they were in a very pressure situation. हमें ऐसी सिचुएशन दूसरी बीमारियों की वजह से क्रिएट ना हो जाए, इसीलिए कुछ प्रिकॉशंस हमने बना के रखे हैं, और ये प्रिकॉशन आप जब भी जाओगे वहां पर हॉस्पिटल्स में या फिर पब्लिक प्लेसेस में, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन पोस्टर्स के थ्रू पीपल को इन्फॉर्म करने के लिए, अवेयर करने के लिए होते हैं। एंड इट विल बी ऑलवेज, यू नो, आप रीजनल लैंग्वेज में भी देख सकते हो इसे, इंग्लिश में भी देखोगे, हिंदी में भी देखोगे। Who do you think puts up such posters or give ads in the newspaper? Beta, this is a social advertisement. This is a social advertisement, right? तो जो भी सोसाइटी के लिए काम होता है, ये किसके लिए होता है बेटा? ये होता है फॉर द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करती है लोगों की हेल्प करने के लिए। हम बोलिए कहाँ पे रहा है? 825 पे मैसेज था, 825 पे सर आप मुझे बता देना सबने। Now, who puts this ad up, such posters or gives ads in the newspaper? The government puts such posters to make people aware about the breeding, how the breeding of mosquitoes happen, how we can prevent the breeding of mosquitoes so that very less people will get diseases like chikungunya, malaria. Because children, if the condition of the patient is very poor, then it might happen. Now, it definitely affects if the immunity of a person is not very strong. Definitely, he will have to be given treatment first, and then if the treatment is not working, he will have to be taken to hospital. Now, this situation is a stress on the beds, on the facilities provided by the hospital. Now, children, not everyone is fortunate enough, not everyone is having such big pockets which will allow them to have access to good hospitals. So इन्हीं सारी चीजों को avoid करने के लिए we have to government makes different set of posters about different diseases. What are some of the important points given in the poster? तो बच्चे important points वही हैं जो मैंने आपके साथ में discuss किए हैं अभी. Why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the picture? Why do you think the
such kind of places is shown? Because these are the places where which become the breeding place of the mosquitoes, where it becomes a house where the cycle of the mosquito, that is from from larvae to pupa to mosquito to a fully grown mosquito, that cycle gets completed. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन, हमारा ये वाला बेटा ये वाला पॉइंट हो चुका है. इसमें जो क्वेश्चंस थे हम लोगों ने, इट वाज अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और ये बेटा ये कंप्लीट हो चुका है. नाउ कमिंग टू पेज 72 itself, there is a subtopic think. अभी हमें ये कंप्लीट करना है. नाउ मैम इसे कॉपी में लिखना है. बेटा जी मैं फोटो खींच के डाल दूंगी गूगल क्लासरूम पे, अभी नहीं. आप जैसे सेशन ओवर हो जाता है, आई विल पुट द इमेजेस, आप अपनी टेक्स्ट बुक में फिर गूगल क्लासरूम से लिख लेना. एम आई क्लियर टू एवरीवन? गुड. विल यू डू इट राइट? ठीक है बेटा. नाउ लेट अस, why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? Please excuse me, children. Why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? तो बेटा वो क्या बोल रहे हैं कि अगर टैंक्स में इस तरह से लार्वे क्रिएट हो जाते हैं, तो आप क्या करो, उस टैंक में फिशेस को डाल दो, बिकॉज दीज लार्वे विल बिकम फूड फॉर द फिश. It will become food for the fish, and then these larvae will go into the stomach of fish. So no larvae will be left. If there will be no larvae left, it will not be. If there will be no larvae left, it will be. It will. Sorry. If there will be no larvae left, these mosquitoes will not be breeding. And if mosquitoes will not breed, they will not bite you, and we will be safe from many diseases. What will happen when the oil is spread on water? जो ऑयल है वो स्प्रेड हो जाता है. What will happen when the oil is spread on water? When we put oil on water, because a thin film of oil on water prevents oxygen supply to eggs and larvae of mosquitoes, and thus they are. एक मिनट बेटा आप ये आंसर लिख लो, बिकॉज ये आंसर आपका टेक्स्ट बुक में लिख लो, मैं अभी लिखवा रही हूँ आपको. मैम फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं बच्ची, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ. व्हाट विल हैपन व्हेन द ऑयल इज स्प्रेड ऑन वाटर? मैम पेज नंबर हाँ बच्चे पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 72 पे है ये. नंबर 72 थी. जी हाँ, उसमें एक थिंक सेक्शन है, आप पूछिए हम लोग को. जी, द थिन फिल्म ऑफ ऑयल. प्लीज राइट द आंसर. The thin film of oil on water prevents on oxygen supply to eggs and larvae of mosquitoes. मैम ऑन वाटर के बाद आपने क्या लिख रखा है? मैम आपके ना राइट साइड वाला नहीं दिख रहा. एक मिनट बेटा मैं करती हूँ, एडजस्ट करती हूँ. मैम लेफ्ट साइड वाला भी दिख रहा है, राइट साइड वाला भी. यस मैम दिख रहा है सब.
यस मैम दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। मैम एक बार आप रिपीट कर दो। जी बेटा, what will happen when the oil is spread on water? When the oil is spread on water, तो क्या होगा अगर water, we know, हमने पहले भी डिस्कस किया है बेटा कि ऑयल जो होता है वो वाटर से ज्यादा डेंस होता है, राइट? एंड ऑयल की ये प्रवृत्ति है कि आप जिस चीज पे भी इसे डालोगे, अगर ऐसी चीज पे डाला जिसकी डेंसिटी उससे कम है, तो ऑयल जो है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है ऑयल से, तो ऑयल जो है, ऑयल इज मोर डेंस, तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा. नाउ व्हेन द ऑयल विल फ्लोट ऑन, when the oil will float on water, what will happen? It will create a thin film. The thin film of oil on water prevents oxygen supply to eggs and larvae of mosquitoes. बेटा यहाँ पे ना एक ए ऐड कर लेना लार्वे की स्पेलिंग में. हाँ, prevents oxygen supply to eggs and larvae of mosquitoes and they get killed. तो क्या होगा कि ऑयल जो है वाटर पे लेयर बना देगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई है. बेटा हम सबको, एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, राइट? वी हैव टू ब्रीथ, वी हैव टू, हमारा मेटाबॉलिज्म चले, हमारी पूरी जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो चले, इसलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. तो जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, हाँ बेटा जी आपको लिखना है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है एग्स को और लार्वे ऑफ मॉस्किटोज. जब फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉस्किटोज ले एग्स, उन एग्स में से बेटा लार्वे निकलते हैं. दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ साइकिल ऑफ, सॉरी, लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस्किटो. तो लार्वे और एग्स दोनों को ही जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कट हो जाता है, और मॉस्किटोज वहां पर, मॉस्किटोज भी, अगर उसमें ऐसा भी होगा कि कुछ लार्वे मॉस्किटोज बन चुके होंगे, तो उन, जब कुछ लार्वे मॉस्किटोज बन चुके होंगे तो व्हाट विल हैपन? दे विल गेट किल्ड, दे विल गेट किल्ड. मैम फुल स्टॉप. मैम हाँ बेटा जी बोलो. मैम जो आपने कल, कोई क्वेश्चन है आपको बेटा? मैम जो आपने कल वर्कशीट भेजी थी उसमें से आपने जो वर्कशीट का फाइंड आउट वाला भेजा था ना, उसका आपने क्वेश्चन का, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं भेजा. ठीक है बेटा जी, आप एक काम करना, मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर देना, मैं आंसर आपको दे दूंगी. आपके साथ में टेक्स्ट बुक के आंसर्स मैंने आपके साथ में शेयर किए थे, बट जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है ना बेटा, आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है मैम? जी बेटा. क्या हुआ बेटा? व्हाट इज चिकनगुनिया? चिकनगुनिया, ओके. चिकनगुनिया इज अ, चिकनगुनिया बेटा जो डिसीज होती है, इट इज अ टाइप ऑफ डिसीज आपने लगाया सादिया म्यूट योर माइक, which is caused by the bite of mosquitoes. अब वो भी मेजरली मलेरिया या फिर फाइलेरिया की तरह ही होती है, जिसमें हाई फीवर रहता है और चिल्स रहते हैं बॉडी में. तो फीवर रहेगा और देन योर बॉडी विल बी फीलिंग वेरी वीक, और इसी टाइम पे फिर क्या होगा? देन यू विल हैव टू बी एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल. फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार टेक्स्ट ड्रॉप कर देना, आई विल एक्सप्लेन मोर. मैम बेटा सब लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन आंसर लिख लिया है? कैन आई मूव फर्दर? यस यस मैम. यस मैम. हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज से बेटा, जी बेटा प्लीज आवाज मत करिए. हाउस फ्लाई डन मैम. होती हैं. आई विल मुझे आप गूगल क्लासरूम पर भेज दोगे ना? when I will take the next class. But अभी हमें, we have to complete what is there in our textbook. Do not worry, I will take that session also. Now please come to page number 73. Can I rub the blackboard, the upper portion of the blackboard from here? क्या मैं ये? No ma'am. No ma'am. कब कर रही हूँ बेटा? Yes ma'am. मैं आप इसे गूगल क्लासरूम पर भेज दोगे?
और बच्चे मैं हमेशा नोट्स तो भेज ही देती हूँ ना। यस मैम। तो प्लीज कम टू पेज नंबर 73. Please come to page number 73. Which diseases are spread by flies and how? तो बच्चे हमने यहाँ पे दो एनिमल्स को अभी तक बहुत मतलब we have focused on two animals. One was mosquito, the other one being housefly. Mosquitoes हमें बाइट करते हैं, इसकी वजह से डिसीज होती है. और housefly क्या करती है? It sits on very dirty matter in the garbage bins और दूसरे dirty matters पे. और जो पैरासाइट्स होते हैं उनके ऊपर सिट कर उनकी जो हेयर्स और लेग्स होते हैं उनसे चिपक जाते हैं. उनसे क्या होता है बेटा? चिपक जाते हैं. और इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से क्या होता है कि हाँ, इसी वजह से क्या होता है कि जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे फूड में मिक्स हो जाते हैं. Suppose I have cooked the curry and the fly sits on that curry, or there are certain fruits and vegetables kept on the table. So the fly will sit. The fly will sit on the table on the fruits, and we will not know if we do not. That is why it is always advised, children, that we have to always now. Excuse me. No. That is why it is always said that it is always said that children. Have you all written this question answer? Yes, ma'am. यस मैम। That is why it is always said कि जब भी हम खाना खाते हैं, if there is Yes, some ma'am. food यस item मैम। to be that is served and to be eaten, then we should cover that food. And if there are fruits that are kept on the कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स रख के रखता कि कभी भी कोई आए खा ले, राइट? तो उनको हमें क्या करना चाहिए? That should also be covered. That can be kept in a container और एक that can be kept in a container. और जो वायर मैश होता है उससे उसे ढक दो. अगर दूध रखा हुआ है, दूध बॉईल किया है आपने, आप उसको कवर कर दो ताकि उसमें कोई भी इंसेक्ट सिट ना कर पाए. ठीक है बच्चे? और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल्स बेटा हम इस तरह से ओपन में नहीं रखते. वी अगर हमारे घर में फ्रिज होता है तो वी यूजुअली स्टोर वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, है ना? तो बेटा जब हम लोग फ्रिज में अच्छी तरह से उसे स्टोर कर देते हैं, तो फ्रिज में स्टोर करने से पहले भी बेटा हमें वेजिटेबल्स को एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए. एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए ताकि उसके ऊपर अगर कोई भी पैरासाइट्स या फिर पैरासाइट्स बैठे हों तो जर्म्स जो भी होंगे. यस बेटा. नाउ प्लीज राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. बेटा यहाँ पे टेक्स्ट पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हाईलाइटेड है. प्लीज ऑल ऑफ यू कम टू दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट में. मैम उसका मैम ये अपने ऊपर लिख ले. हाँ बेटा, ये ना इसका मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ आपके लिए, ठीक है? Which diseases are spread by flies and how? तो बेसिकली जो हमारे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम वो आंसर के लिए जगह नहीं। बेटा टेक्स्ट बुक है ये. दिस नीड्स टू बी डन इन योर टेक्स्ट बुक. ये आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट है, तो आप आंसर टेक्स्ट बुक में ही करेंगे.
मैम पेज नंबर क्या है टेक्स्ट बुक का? पेज नंबर है बेटा, इट इज पेज नंबर 73। मैम ये बुक में करना है? हाँ बेटा, टेक्स्ट बुक में करना है इसे। मैम इसका क्वेश्चन कौन सा है? ट्राई फाइंड आउट, और इसका क्वेश्चन नीचे वाला है। मैम मेरा करा हुआ ही है। हाँ आपका फर्स्ट वाला है। मैम भारत क्विज इज प्रेजेंट मैम। बेटा मैं अटेंडेंस बाद में लूंगी। मैम ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? एक बार इसका क्वेश्चन रीड करना है। नहीं दिख रहा। मैम इसका क्वेश्चन रीड कर दीजिए। जी बेटा, एक मिनट। मैम भावेश यादव का माई कौन है? बच्चे जिसका भी मैम माइक प्लीज ऑन है साइड। प्लीज ऑफ कर लीजिए। मैम साइड मैम प्लीज। प्लीज साइड। एक मिनट बेटा, मैम साइड प्लीज। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन देखिए, एकदम पेज नंबर 73 के टॉप पर ही है। विच डिसीजेस आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ? विच डिसीजेस मैम आर इसको स्प्रेड ऊपर बाय द लिख ले। फ्लाइज एंड हाउ? मैम इसको ऊपर लिख ले। हाँ बेटा, ऊपर लिख लो, ऊपर स्पेस है। नाउ आई एम या बेटा लिख लो आप सब लोग। डन मैम। एक मिनट बेटा, आप लोग लिख लीजिए। मैम मेरा हो गया। डन मैम। डन मैम। मैम डन मैम। आप इसका क्वेश्चन रीड कर। हाँ डन मैम। मैम आप इसका क्वेश्चन कीजिए। मैम आप इसका आंसर रिपीट कर दो। आंसर तो लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन भी लिखा हुआ। मैम आप इसका क्वेश्चन रीड कर दो ना, मुझे पता नहीं चल रहा है आंसर। लिखा है ना अरे फाइंड हाँ आउट। मैम ने सुन लिया।
मैम आपका माइक ऑफ है। मैम ने किया होगा। कर लो तुम्हारा माइक। मैम वंशी का म्यूट है माइक। मैम इसका क्वेश्चन रीड कर दो ना। मैम कितनी बार कर दिया मैम ने। मैम आप इसका क्वेश्चन रीड कर दो ना। वंशी का म्यूट है माइक। मैंने वंशी आपका का म्यूट है माइक। Find out page number 73. मैं आपका माइक हो। What discussion वाला? इसका क्वेश्चन क्या है? What discussion are spread by flies and how? Yes, this is the question. और ये बुक में लिखना है। ठीक है बेटा जी, अभी आप इस क्वेश्चन और आंसर दोनों को टेक्स्ट बुक में लिखोगे, ठीक है? डन मैम। डन मैम। जी। Now on page number 73, children, there's a topic, mosquito check. Can you all see this topic? This is an activity, mosquito check. Now this activity, it cannot be done now, but बच्चे, we can always, अभी अभी हमने रेनी सीजन को देखा है, उसमें हमने देखा कि उसमें जितनी भी कंडीशंस मॉस्किटोज को ब्रीड करने के लिए, जितनी भी कंडीशंस मॉस्किटोज को ब्रीड करने के लिए फेवरेबल थी, वो सारी हमने देखी हुई है. Have you all completed this answer? कोई बच्चा बचा तो नहीं है ना लिखने के लिए? ठीक है, we'll move to the next topic, children. That is यस मैम। मैम थोड़ा सा। मैम या मैम थोड़ा सा बाकी है। बेटा लिख लो आप, मॉस्किटो लिख लो आप. ऑलरेडी डन। व्हाट आई नो। एक तकिया दे। मैम सबको बोला कि अपना माइक म्यूट करे। जी बेटा, एक मिनट. ऐसे कैसे हो रहा है? आई म्यूटेड ऑल. मैं एक बार चेक कर देती हूँ कौन बात कर रहा है. नहीं बेटा, सब म्यूटेड ही है. मैम आपने ना फर्स्ट आंसर मतलब ये जो आंसर लिखा है ना उसको एक बार रीड कर दो. ठीक है बेटा, मैं रीड कर देती हूँ. DYSENTRY dysentery, CHOLERA cholera, typhoid TYPHOID typhoid, anthrax ANTHRAX etc. are caused CAU बेटा यहाँ पे है CAUSED by flies. When flies sit on contaminated material, harmful germs stick to the legs. When the same fly sits on the food, the germs get transferred to the food. Is the answer clear? यस मैम। Now, मैम ब्लैक बोर्ड ब्लर आ रहा है.
No, ma'am. board is clear. Ma'am, board is clear. Yes, body is clear. Ma'am. Blackboard is clear. Ma'am, blackboard is not clear. ठीक है बच्चों, अगर ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है, ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है, आई विल राइट द आंसर्स एंड पुट इट ऑन द गूगल क्लासरूम. Ma'am, blackboard is clear. Right now, please come to this topic. Please come to this topic. Please come to the topic. Please come to the topic mosquito check. Please come to the topic mosquito check on page number 73. Now, divide your class into 2 to 3 groups. Each group will go around to check one area in the school or around it. It must carefully note if water is being collected anywhere and mark tick where it finds stagnant water. तो बच्चे काफी सारी places हमें देख के रखे हुए. We have to see if water is being collected in our school, in the school or not, in these areas such as pot, cooler, tank, any open space in the school ground, gutter, any other place. तो ये बच्चे जितने भी places हमें दी गई हैं, these are very prone for water being collected over there, right? Now, since how many days has water collected over there? तो कितने दिनों से water collect हो रहा है, ये भी mention करो. Who is responsible for keeping these places clean? Who is responsible for keeping these places clean? Now, बच्चे अगर ground school का है, तो it is the, now अगर हम हमारे स्कूल की बात करें, who is responsible? I'm just writing the question. Who is responsible? Who is responsible? मैम आप कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा रही हो? और बेटा जी ये सेकंड क्वेश्चन है. बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन मैं लीव कर रही हूँ. Who is responsible for keeping मैम वो है क्या साइन हाउ Question 73 पेज नंबर मॉस्किटो. ठीक है. हु इज रिस्पॉन्सिबल? अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर अगर वाटर इज बीइंग कलेक्टेड, अगर वाटर किसी पिट में कलेक्ट है तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? जो ग्रुप डी के वर्कर्स होते हैं उनको ये बोलेंगे कि आप थोड़ी सी मिट्टी ले जाके उन पिट्स को कवर कर दो. अगर पॉट्स में वाटर कलेक्ट हो रहा है, टीचर्स ने देखा, प्रिंसिपल ने देखा, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया ग्रुप डी को, तो वो क्या करेंगे? उन पॉट्स को उल्टा पहले क्लीन कर देंगे ताकि उसमें काई न जमे, उसे सुखा देंगे और उसे उल्टा रख देंगे. Now, who is supposed to get the gutters and drains repaired? Who is supposed to get? ना वो मैम आपका माइक म्यूट है. मैम नहीं करा है. मैम आपका माइक म्यूट है. ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन के लिए इतना बहुत है. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन दैट आई टेक. एंड इफ जो भी आंसर मैंने लिखा है और आपकी वर्कशीट डालूं, वो भी आप कंप्लीट करना. हैव अ ग्रेट डे अहेड. अभी आपकी क्लास